Welcome, students. And today our task is Of Nobility by Francis Bacon. Once again, the start is very abrupt, and it feels as if Bacon is well aware of his readers, and he thinks that his readers are very well aware of the meaning of nobility. So he starts with the um, in the mid of the discussion, as if he says, we will speak of nobility first as a portion of an estate, then as a condition of particular persons. So he wants to say that he will discuss the nobility in two ways, in two terms. First of all, uh, we should know what nobility is. Nobility is defined as a privileged class holding hereditary titles, and this class is also called aristocracy. And nobility can be defined also as the quality of elevation of character, ideals, or conduct. And both definitions are being applied here in this essay. And the two aspects of the topic under discussion, which Bacon is saying that he will discuss in the essay, are nobility as a portion of an estate and nobility as a condition of particular persons. ये उसने हमें दो चीज़ें बताई हैं जी. A monarchy where there is no nobility at all is ever a pure and absolute tyranny. And according to Bacon, this is the part where he is going to discuss nobility as a portion of an estate, and he says that without nobility, the rule is a pure and absolute tyranny. And he is discussing about the rule of a monarch, a person, you can say a dictator. And he says if there is no nobility, the rule will be pure and absolute tyranny, बहुत जुल्म होगा बड़ा शिद्दत का. And as that of the Turks, और इसमें इसने एग्जाम्पल कोट की है टर्क्स की, और यहाँ पर we can see the prejudiced aspect of Bacon as a non-Muslim. हमें ये पता है, हमने पहले जब बेकन का स्टाइल डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि देयर वर सम circumstances and were some conditions which affected the writers of this particular age, because ये वो era है, ये वो age है कि जिस वक्त टर्क्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं in the biggest part of the world, and the people belonging to the non-Muslim world, they want to get back these territories from Muslims. और उसमें जो है वो टर्क्स को they feel that Turks are ruling the people without their consent, and they think that Turks are an example of pure and absolute tyranny. For nobility it tempers, and this is called prejudiced aspect of Bacon, and the reason behind is this, that history says that Turks ruled the places, the territories, in a very reasonable and very realistic manner, very practical way, that people enjoyed their freedom at extreme, at their peak. और उसमें जो है इवन के जो नॉन मुस्लिम्स थे, दे एडमायर्ड द रूल ऑफ द टर्क्स. और इसमें हिस्ट्री जो है वो इस चीज़ को जो है विटनेस करती है. ये किसी का पर्सनल व्यू ज़रूर हो सकता है कि टर्क्स जो थे वो इस तरह से, आपके आजकल तो बड़ा क्लियर आप इसको देख सकते हैं, आपके ड्रामास में भी चल रहा है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसकी आजकल डिस्प्ले हो रही है रिलेटिंग टू द टर्क्स, तो उसमें आपको क्लियर हो सकता है. फॉर नोबिलिटी इट टेम्पर्स सॉवरेनिटी. नोबिलिटी टेम्पर्स सॉवरेनिटी. जो नोबिलिटी होती है ये सॉवरेनिटी को, यानी रूलर्स को
थोड़ा सा टेम्परेट करती है, मॉडरेट करती है, और उनके एटीट्यूड को डिफ़ाइन करती है, इक्वलाइज करती है, स्मूथ करती है, एंड ड्रॉज द आइज ऑफ द पीपल समवॉट असाइड फ्रॉम द लाइन रॉयल, कि जो लोग हैं वो उनकी जो तवज्जो है, उनकी अटेंशन जो है डाइवर्ट करती है फ्रॉम अवे फ्रॉम द रूलर्स। उसमें यह है कि जो लोग हैं उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है फ्रॉम अवे फ्रॉम द किंगडम, अवे फ्रॉम द रूलर, टूवर्ड्स द नोबिलिटी। वो सिर्फ उन लोगों को देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं, और जो उनकी रिस्पेक्ट है वो उनके जहन में जो होती है उसकी वजह से वो लोग उसको रिगार्ड कर रहे होते हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका इस बारे में क्या ख्याल है, इसलिए वो रूलर्स की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। सो यहाँ पर बेकन ने डिफ़ाइन किया है द पर्पस, द ड्यूटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोबिलिटी, यानी कि ये वो पर्टिकुलर क्लास है नोबल पीपल की, उनका क्या ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी ये है कि वो सोवरानिटी को, यानी कि जो रूलर है उसको मॉडरेट करते हैं टुवर्ड्स पीपल, और पीपल को स्मूथ करते हैं टुवर्ड्स द रूलर। तो ये टू वे ट्रैफिक है जो कि जिसको ब्रिज कर रहे हैं आपकी नोबिलिटी। बट फॉर डेमोक्रेसीज दे नीड इट नॉट। अब ये जो अभी तक बात की हमने, ऐसी जगह की बात की, ऐसी गवर्नमेंट की बात की जिसको आप कहते हैं कि वो एक रूलर है, एक ऐसा रूलर है कि जो जिसको सिर्फ़ और सिर्फ रूल करना है लोगों के ऊपर, और उसमें डेमोक्रेसी का कोई उसमें हाथ नहीं है। जैसा कि आप कह सकते हैं, अक्सर आपके कहते हैं कि जी डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि आमरीत जिसको आप कहते हैं कि रूल ऑफ वन पर्सन। तो ये डेमोक्रेसीज़ जो हैं उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नोबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नोबिलिटी का जो हमने पीछे पर्पस पढ़ा है वो ये है कि वो जो रूलर है उसके थिंकिंग को, उसके एटीट्यूड को मॉडरेट करता है पब्लिक की तरफ, और पब्लिक की जो थिंकिंग है उसको मॉडरेट करता है टुवर्ड्स द रूलर। तो यहाँ पर जब डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी में चूँकि रूलर्स लोगों के अपने सिलेक्टेड रूलर्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर नोबिलिटी को ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ वहाँ पर अकॉर्डिंग टू बेकन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है रूलर का जो है साइड ऑन द साइड ऑफ पब्लिक, और पब्लिक का जो है वो रूलर के ऊपर होता है, इसलिए उनको नोबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती टू ब्रिज देयर रिलेशनशिप, एंड दे आर कॉमनली मोर क्वाइट एंड लेस सब्जेक्ट टू सडिशन। और लिहाजा चूँकि डेमोक्रेसी होती है, लोग जो हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट की होती है गवर्नमेंट, इसलिए दे आर क्वाइट, वो खामोश होते हैं, उनको कोई उनके अंदर रिबेलियन भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रूलर के ख़िलाफ़ कोई बात करें। देन वेयर देयर आर स्टर्प्स ऑफ नोबल्स, कि जहाँ पर ज़रूरत होती है ना जी, जो पीछे हमने बात की थी जिस गवर्नमेंट की, उस किस्म की गवर्नमेंट में नोबल्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पर डेमोक्रेसी में ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें हमें क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी में ज़रूरत नहीं होती और डिक्टेटरशिप में ज़रूरत होती है, उसके लिए बेकन का जो ख्याल है वो ये है कि पीपल डू नॉट लाइक रिबेलियन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? विच इज़ नीडेड इन द केस ऑफ डिक्टेटर व्हेन एवर ही क्रॉसेस लिमिट्स एंड वायलेट्स द लॉ एंड गोज़ अगेंस्ट द बेसिक राइट्स ऑफ पब्लिक। तो फिर क्या होता है कि फिर लोग जो हैं वो आगे निकलते हैं, और नोबिलिटी उनको इनकरेज करती है इस सब के लिए। तो इसलिए जो है वो नोबिलिटी को ज़रूरत पड़ती है जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है। डेमोक्रेसी के लिए उनको ज़रूरत नहीं होती है। For men's eyes are upon the business and not upon the persons, or if upon the persons, it is for the business sake, as fittest and not for flags and pedigree. अब उसने राइटर ने कहा कि अगर डेमोक्रेसी होती है तो फिर क्या होता है, द पीपल आर बिजी विद देयर अर्निंग, वो अपने बिजनेस के साथ, अपने कमाई के साथ, अपने खाने पीने के साथ, यानी इस किस्म की जो उनकी लाइफ है उसके साथ वो बिज़ी होते हैं। डू नॉट पेड ही टू द पीपल
एक्सेप्ट फॉर द बिजनेस टास्क। और वो इधर उधर देखते ही नहीं है, सिर्फ उनकी अपनी लाइफ जो है उसके साथ उनका ताल्लुक़ होता है, इसके अलावा इधर उधर वो अटेंशन ही अपनी डाइवर्ट नहीं करते हैं। और इवन नोबल्स की तरफ भी नहीं देखते हैं, नोबल्स की तरफ भी देखने की उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर वो नोबल्स की तरफ देखते हैं तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस सेक के लिए, अपने बिज़नेस टास्क के लिए उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो उनसे कुछ चाह नहीं रहे होते, उनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे होते कि जैसी डिमांड्स उनकी जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट में है। We see the Switzers last well, notwithstanding the diversity of religion and of cantons. यहाँ पर उसने एग्जाम्पल कोट की है स्विट्ज़रलैंड की कि उनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं and they belong to different religions, belong to different regions, but their collective profit and aim is one and same for all. उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनकी एक डाइवर्सिटी ज़रूर है रिलीजन की, वो दूसरी जगहों पर एक दूसरे से दूर रहते ज़रूर हैं। फॉर यूटिलिटी इज़ देयर बॉन्ड नॉट रिस्पेक्ट्स, उनके लिए बॉन्ड जो है वो उनकी यूटिलिटी है और वो उनका कलेक्टिव प्रॉफिट है, कलेक्टिव एडवांटेज है उनका एज ए नेशन। उनके लिए उनकी जो प्रायोरिटी है दैट इज़ नॉट गिवन टू रेसेस, रिलीजन, फैमिलीज और रीजन्स, दैट इज़ गिवन टू देयर कलेक्टिव advantage, collective benefits. The United Provinces of the Low Countries, लो कंट्रीज़ में आपका नीदरलैंड आ जाता है, हॉलैंड आ जाता है। इन द गवर्नमेंट एक्सेल फॉर वेयर देयर इज़ इनइक्वालिटी, द कंसल्टेशंस आर मोर इंडिफरेंट एंड द पेमेंट्स एंड ट्रिब्यूट्स मोर चीयरफुल। यहाँ पर उसने एग्जांपल फिर से दी है। उसने कहा जी जो 7 प्रोविंसेस थे इनके, वो दे सेपरेटेड फ्रॉम स्पेन एंड बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट। और जब वो इंडिपेंडेंट हो गई तो उनकी गवर्नमेंट इतनी ज़बरदस्त है, उसने इसको एडमायर किया। उसने कहा कि वहाँ पर इक्वालिटी है, लॉ की, पेमेंट की, टैक्सेस की, ट्रिब्यूट्स की, यानी एवरीथिंग इज़ पेड इक्वली एंड चीयरफुली। उनको कोई उसमें बर्डन फील नहीं होता। जी, अ ग्रेट एंड पोटेंट नोबिलिटी एड्स मैजेस्टी टू अ monarch। ये थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज इसमें थ का यूज़ किया जाता है। एड्स मैजेस्टी टू अ monarch। अब यहाँ पर राइटर का ख्याल है कि जो नोबिलिटी होती है, जो ग्रेट और पावरफुल नोबिलिटी होती है, वो जो रूलर है उसके उस रूल में एक मैजेस्टी का फैक्टर तो ज़रूर ऐड करती है। एडवांटेजेस, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नोबिलिटी डिस्कस हो रहे हैं जी। और उसमें उसने कहा कि जी अगर स्टेट को देखा जाए तो नोबिलिटी जो है वो एड्स मैजेस्टी टू अ रूलर बट डिक्रीजेज इट्स पावर, कि पावर जो है वो नोबिलिटी के पास रहती है एंड इट पुट्स लाइफ एंड स्पिरिट इनटू द पीपल। और वो जो पावर है उसकी वजह से, उसकी बेसिस पे वो लोगों के अंदर लाइफ और स्पिरिट जो है वो इनकलकेट करती है, बट प्रेसेस देयर फॉर्चून, लेकिन उनके लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। ये है डिसएडवांटेजेस कि जिसमें कि लोगों को वो नो डाउट कि लाइफ और स्पिरिट तो देते हैं बट पुट्स अ ग्रेट स्ट्रेस देम फाइनेंशियली। It is well when nobles are not too great for sovereignty nor for justice। अब यहाँ पर बेकन जो है वो डिस्कस कर रहा है इस चीज़ को कि अगर नोबल जो हैं वो ना तो सोवरेनिटी को फ़ायदा दे रहे हैं, ना ही वो जस्टिस कर रहे हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस उनको फॉर बोथ स्टेट एंड पीपल। कि nobility not able to perform its duty for a state in form restricting rebellion, neither for people in form of maintaining justice। तो फिर क्या होगा, yet maintain in that height, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसको उन्होंने रखा ही नहीं, वो अभी भी मिनिस्टर बने हुए हैं, अभी भी वो वज़ीर बने हुए हैं। एज द इंसोलेंसी ऑफ इन्फीरियर्स मे बी ब्रोकन अपॉन देम। तो फिर क्या होगा कि जो इन्फीरियर्स होंगे या जो पब्लिक होगी वो रिबेलियंस हो जाएंगे बिफोर इट कम ऑन टू फास्ट अपॉन द मैजेस्टी ऑफ किंग्स, और जो रूलर्स हैं उनकी तरफ भी वो डाइवर्ट होगी। तो फिर वो एक क्योस सा डेवलप होगा पूरी स्टेट में। तो बाद में उसने कहा जी फॉर इट इज़ अ न्यूमरेस्ट नोबिलिटी कॉज पॉवर्टी एंड इनकन्वीनियंस इन अ स्टेट। अब उसने कहा कि जी अगर टू मच हो जाए नोबिलिटी तो फिर क्या होगा कि एक तो ये पॉवर्टी कॉज करती है क्योंकि टू मच प्रेशर है, फाइनेंशियल इनकन्वीनियंस इन अ स्टेट है
कि अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो उसमें लोग अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं, उनके रूलर्स उस लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो रूल करना चाहते हैं। लेकिन नोबिलिटी जो है वो उनके अपने जो कोई प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो अपने उन्होंने कोई वैल्यूज़ अपने कोई नॉर्म्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना चाहती है, तो दैट विल क्रिएट इनकन्वीनियंस इन अ स्टेट। और पॉवर्टी तो होगी डेफिनेटली, बिकॉज उनकी वजह से जो है स्ट्रेस है आपके लोगों पर। For it is a surcharge of expense, and besides it being of necessity that many of the nobility fall in time to be weak in fortune, it make it a kind of disproportion between honor and means. अब उसने कहा कि जी अगर वीक हो जाती है नोबिलिटी आपकी, उनका वो इस्टीम नहीं रहता है, वो रिस्पेक्ट जो है उस तरह से नहीं रहता, या अथॉरिटी को उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक इनइक्वालिटी जो है वहाँ पर कॉज होगी बिटवीन देयर ऑनर एंड देयर स्टेटस। एज़ फॉर नोबिलिटी इन पर्टिकुलर पर्सनस, अब बात आ गई सेकेंड वाली की। अब वो सेकेंड वाला जो है वो उसमें कर रहे हैं जी, एज़ फॉर नोबिलिटी इन पर्टिकुलर पर्सनस, अगर पर्सनस की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ रेवेरेंट थिंग, बड़ी वहाँ पर वेनरेबल थिंग है, बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है। टू सी एन एंशियंट कैसल और बिल्डिंग नॉट इन डिके, और टू सी अ फेयर टिम्बर ट्री साउंड एंड परफेक्ट। तो इसमें एग्जाम्पल यूज़ कर रहा है वो एंशियंट कैसल की, बिल्डिंग की, यूज ट्री की, कि जिस तरह से हम इनको संभाल के रखते हैं कि ये हमारा विरसा है, ये हमारी ये हमारी जो है लेजेसी, ये जो हमें चलानी है, या हम उनको देखते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये एंटीक्स हैं, हम उनको संभाल के रखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से दीज थिंग्स शो द हाइट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी इन नोबल फैमिलीज़। तो उसने कहा how much more to behold an ancient noble family which has stood against the waves and weathers of time, कि वो जो noble family चलती चली आ रही है इसी तरह से ancient time से, और उसने ups and downs भी देखे हैं लाइफ के, तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे जहन में उनकी जो रिस्पेक्ट है वो भी, रिगार्ड जो है उनका हमारे जहन में उसी तरह से होता है। For new nobility is but the act of power, but ancient nobility is the act of time. जो न्यू नोबिलिटी है वो उनके पास वो चूँकि नए ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका जो है वो ज़्यादा वो पावरफुल हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने उसको हासिल किया, तो वो अब अचानक से नोबल बन गए हैं। तो जो एंशियंट नोबिलिटी है दैट इज़ एक्ट ऑफ द टाइम, कि वो वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इस लेवल तक पहुँचे हैं, प्रमोशंस पे वो उनके अपने जो एंसेस्टर्स थे उनसे उन्होंने ड्रॉ किए हैं, अपने सारी उनकी वैल्यूज़ को उन्होंने अपने अंदर जो है वो लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर उसने हमारे सामने डिफरेंस जो है वो बताया है न्यूली एक्वायर्ड नोबिलिटी में और जो एंशियंट नोबल फैमिलीज़ हैं उनके बीच में। Those that are first raised to nobility are commonly more virtuous but less innocent than their descendants. उसका ख्याल है कि जो लोग नोबिलिटी के साथ, यानी इस कैरेक्टर के साथ बिल्डअप किए जाते हैं, दे आर मोर वर्चुअस बट लेस इनोसेंट देन देयर डिसेंडेंट्स। अपने बच्चों से वो ज़्यादा नेक होते हैं लेकिन लेस इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर बुराइयां भी हो सकती हैं। फॉर देयर इज़ रेयरली एनी राइजिंग बट बाय अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड ईवल आर्ट्स। ये बेकन का ख्याल है कि जो भी कोई नोबल फैमिली अपने बच्चों को ग्रो अप करती है, तो वो उनको गुड वैल्यूज़ और ईवल वैल्यूज़ दोनों उनके अंदर किसी न किसी तरह से जा रहे होते हैं। तो बट इट इज़ रीज़न द मेमोरी ऑफ द वर्चूज़ रिमेन टू द पोस्टेरिटी एंड देयर फॉल्ट्स डाई विद देमसेल्व्स। तो उसने कहा कि ये रीज़न है कि उनके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो जो उनकी वर्चूज़ हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उनके जो वाइसेस हैं, जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, वो उनके साथ ही वो भी ख़त्म हो जाएंगी। दे विल बी एंडेड विद देम। नोबिलिटी ऑफ बर्थ कॉमनली अबेटेड इंडस्ट्री। अगर आप बाय बर्थ नोबल हैं तो फिर क्या होगा, आप मेहनती नहीं रहते, आप हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्कर नहीं होते। एंड ही दैट इज़ नॉट इंडस्ट्रियस एंड वी थीम दैट इज़। तो फिर क्या करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो जो हार्ड वर्क करता है उससे ये थोड़ा सा जेलस फील करते हैं।
बिसाइड्स नोबल पर्सन कैन नॉट गो मच हायर, और ये जो नोबल पर्सन जो कि चूँकि वो मेहनत नहीं करेंगे, दे कैन नॉट गॉट मच हायर, कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एंड ही दैट स्टैंडeth एट अ स्टे व्हेन अदर्स राइज कैन हार्डली अवॉइड मोशंस ऑफ एनवी। अब जो चूँकि वो उसके लिए हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे, स्ट्रगल ही नहीं कर रहे, एक जगह पर रुके हुए हैं, तो अब उनके मुकाबले में कोई बंदा जो है, कोई बाहर से आकर जो नोबल नहीं था बाय बर्थ, लेकिन उसने मेहनत की और वो उनसे ऊपर चला गया, तो ये उससे अपने आप को रोक नहीं सकते कि उससे जेलस फील करें। ऑन द अदर साइड नोबिलिटी एक्सटिंग्विशेस द पैसिव एनवी फॉर फ्रॉम अदर्स टुवर्ड्स देम बिकॉज दे आर इन पोजेशन ऑफ ऑनर। और दूसरी साइड ये भी है कि नोबिलिटी चूँकि उनके पास ऑनर है, उनके पास इस्टीम है, उनके पास स्टेटस है, तो उसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो मतलब उस लेवल पर नहीं आ सकते हैं। लिहाजा इनके अंदर से जो इस किस्म की एनवी है जो कि दूसरों को नज़र नहीं आती, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है इस नोबिलिटी की वजह से। यानी कि वो समटाइम्स तो वो राइज़ करेगी अगर वो दूसरे लोग उनसे आगे चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर उनके स्टेटस की बात आएगी वहाँ पर दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो उसमें वो जो उनका एनवी है दूसरों के लिए वो ख़त्म भी हो सकता है। Certainly, kings that have able men of their nobility shall find ease in employing them, and a better slide into their business, for people naturally bent to them as born in some sort to command. अब उसने कहा कि जी यकीनन, अब यहाँ पर वो कंक्लूड करने जा रहा है और उसने कहा कि जी जो किंग्स होते हैं, किंग्स डेफिनेटली किंग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो एक सिंगल पर्सन रूलर होता है, तो वो क्या है, उसमें फिर वही बात आ जाती है डिक्टेटरशिप की, कि उनके लिए ज़रूरत होती है कि वो नोबिलिटी को लेकर आए अपने साथ टू रन द गवर्नमेंट स्मूथली एंड टू कीप पीपल काम एंड क्वाइट। ये उसने कहा कि जी उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि लोग उनका रिगार्ड कर रहे होते हैं कि वो नोबल पीपल हैं, तो उनके इस रिगार्ड की वजह से जो है वो लोग जो है वो रूलर के साथ उस तरह से उलझते नहीं है, रिबेलियन कॉज नहीं होता और कोई क्यास नहीं आता है। ये डिक्टेटरशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि उसने इन अदर वर्ड्स उसने नोबल पीपल जो हैं उनको उसने कुछ सजेशंस दिए हैं। उसने इनडायरेक्टली उसने किंग्स को भी सजेशंस दिए हैं जो कि उस ज़माने के थे, और चूँकि ये एक यूनिवर्सल मैसेज कंटेन करता है बेकन, तो इसके जो मैसेजेस हैं वो आज की नोबिलिटी के लिए भी हैं, आज के रूलर्स के लिए भी हैं और आज की पब्लिक के लिए भी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर essay.